آج کے اس جلسہ اسلام معاشرہ کے صدر ہمارے آرگنائزر بھائی یہاں کے مقامی سابق مکھیا بھائی زاہد افسر صاحب اور اسٹیج پر جلوہ افروز تمام قابل احترام علماء کرام حضرات اور اس جلسے میں اکٹھے پہنچے ہوئے آپ تمام معزز حاضرین سامعین و بچے، آج اتفاق سے 2 پروگرام ہو گیا۔ ایک ٹیچر ایسوسی ایشن بیگوسرائے ضلع کا کانفرنس ہے ٹاؤن ہال میں، اتفاق سے اس کانفرنس کی صدارت میرے ذمے ہے، اس لیے وہاں وقت کی پابندی کے ساتھ پہنچنا۔ میں نے ظاہر صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی حاضری آپ کے یہاں ضرور لگاؤں گا۔ اس سے قبل بھی ایک بار میں آیا تھا ابھی کچھ دن پہلے، اور یہ دوسرا اتفاق ملا ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں۔ اسلام معاشرہ کے سلسلے میں جو معاشرے کی خرابیاں، برائیاں اور جس کے خلاف جد و جہد کا عزم کرنے کا ارادہ آپ لوگوں نے کیا ہے، اور ابھی زاہد صاحب نے جو پڑھا ہے تجویز کے شکل میں، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ معاشرہ ایک بڑے دائرے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان کئی معاشرتی نظام کے ملے جلے مشترکہ نظام کا ایک حصہ ہے۔ اس مشترکہ نظام میں آپ بھی ہیں اور اوروں کا بھی حصہ ہے۔ سماج میں ہر کوئی ایک دوسرے کے باتوں سے متاثر ہوتا، اور کوئی بھی چلن جو گاؤں سماج میں ہوتا ہے وہ ایک دوسرے لوگ نقل بھی کرتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ کچھ ہماری اچھائیاں بھی کسی کو ملتی ہیں تو کسی کی خرابیاں بھی ہم قبول کر لیتے ہیں، اور رفتہ رفتہ وہ ایک نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن معاشرہ کے اصلاح کی جو سب سے بڑی جگہ درسگاہ ہے وہ گھر ہے۔ جو گھر زندہ ہے، جو گھر بالکل بیدار ہے، اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں معاشرہ پر اس کا زیادہ سے زیادہ اثر ہو۔ کہا بھی گیا ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ بچوں کا گھر ہوتا ہے، اور گھر میں جو والدین ہیں، والدین جو تربیت اس کو دیتے ہیں وہی بنیادی تربیت ہے، اور اسی تربیت کے خط پر، اسی راستے پر بچے کی نشوونما ہوتی ہے، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر اپنے سماج کی ذمہ داریوں سے باخبر ہوتے ہیں، روبرو ہوتے ہیں، اور پھر وہ سماج کو اسی طرح کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارا سماج آج بہت طرح کے ایک انقلاب کے راستے سے گزر رہا ہے۔ کئی طرح کے چلن پیدا ہو رہے ہیں، کئی طرح کی باتیں ہم سیکھ رہے ہیں جو ہمارے رواج میں شامل ہوتا جا رہا ہے، اور ہم بہت حد تک رواج کے غلام ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے بھی کھانا پینا، رہنا سہنا، شادی بیاہ اور ہمارا آپ کا ایک دوسرے کا سماجی راہ روی، یہ سارے باتوں پر ہم کو غور کریں گے اگر، تو ضرور خامیاں ہم میں خود نظر آ جائیں، اور ان خامیوں کو درست کرنے کے لیے
हम जब तक अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, अपने बच्चों को तैयार नहीं करेंगे, तब तक हम उस बुराई से छुटकारा नहीं पा सकते। अब एक मिसाल ले लीजिए, शादी का ही मसला है। अब शादी में कितने तरह की बुराइयां पैदा हो गई हैं। बेबहा खर्च करने का फैशन हो गया है, दिखावे का फैशन हो गया है। उसका नतीजा क्या होता है कि माशरे में हमारे तरह तरह के माशी एतबार के लोग रहते हैं। आर्थिक स्थिति सबकी अलग अलग होती है और जितना ज्यादा अखराजात शादी ब्याह में दिखावे के लिए लोग करने लगेंगे, उसका बुरा असर गरीबों पर पड़ेगा जो हमारे समाज का ही एक हिस्सा है। और वो देख करके या तो बहुत वहशत में पड़ जाएंगे कि आखिर ये जो दिखावा की सारी सूरतें हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये सारे बड़े लोग सब करके इस माशरे को खराब कर रहे हैं। इसलिए इस मामले में अगर हम और आप सब लोग इस तरह से ध्यान न दें तो ये रविश आम हो जाती है और फिर ये बीमारी बढ़ करके कैंसर हो जाएगी कि आपको रोकते नहीं रुकेगी। इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं समाज में। अभी पढ़ा हमारे जाहिर साहब ने, समाज की रिश्वतखोरी, समाज और सिस्टम की रिश्वतखोरी, सरकारी जो ओहदेदार हैं उनके यहाँ की रिश्वतखोरी। आपका काम है तो आपका उसमें मुंसलिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने हक में काम कराने के लिए रिश्वत को बढ़ावा दे रहे हैं। ये ऐसा मामला नहीं है कि सिर्फ आपके यहाँ से ये बात चल रही है, बल्कि इस पूरे माहौल का, पूरे सिस्टम के माहौल का ये हिस्सा है। हम भी उसके एक हिस्से हैं, इसलिए हम भी मुतासिर हो रहे हैं। इसलिए जब समाजी इस्लाह की बात हम करेंगे तो उसमें न जाने कितनी बातें शामिल हो जाएंगी, जिसका जिक्र तफसील से हमारे उलमा हजरात यहाँ पर हैं, वो अपनी तकरीरों में कहेंगे और काफी गुफ्तगू आपके साथ वो करेंगे और वो बताएंगे कि ये टोटल माशरे में हमारे कौन कौन सी खराबियां हैं और उसको हम अपने शरई एतबार से भी उसको दूर करने के रास्ते हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। और जब आपसे उसका जिक्र करेंगे तो आप पर ये बात छोड़ देंगे कि आप उस पर अमल करने की कोशिश करें और अमल करके समाज को एक नई मिसाल पेश करने की कोशिश करें। अपने बच्चों के मार्फत, अपने बुजुर्गों के मार्फत समाज को कुछ देने का तहैया कर लेंगे अगर आप, तो ये बात आप जरूर करेंगे। आज मुल्क में बहुत सारे खलफशार हैं और इस खलफशार का सामना सबको है, आपको भी है और हिंदुस्तान के जो बिरादरान वतन है उनके अंदर में भी वो सब खुराफात पैदा हो गए हैं। हमको जो आने वाला दिन है वो दिन और भी चुनौतियों का दिन है और भी चैलेंज का दिन है, क्योंकि इस मुल्क में एक वबा फैली हुई है। नफरत फैलाओ और मुल्क में आवाम को बांटने की कोशिश करो, इंसानों के बीच में नफरत पैदा करो। ये नफरत बड़े पैमाने पर टीवी पैदा कर रहा है, लीडरान पैदा कर रहे हैं। एक खास पार्टी के जो लीडर हैं वो तो नफरत की बुनियाद पर ही खड़े हैं और नफरत पैदा करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। बार बार इसी बुनियाद पर वो हुकूमत और इक़्तिदार में आकर के अपना मनमाना कर रहे हैं। आज मुल्क में मनमानेपन का साजिश चल रहा है पूरे मुल्क में, हुकूमत केंद्र की हो या सूबों की हो। जिन सूबों में उनकी हुकूमत है वहां पर देखिए आज इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। इंसान को बुलडोजर से रौंदा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये न्याय का शासन है, ये विधि और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की हुकूमत है। ऐसी हुकूमत जो लॉ एंड ऑर्डर का दावा करती है, उसके हुकूमत में आज सैकड़ों जाने जा रही है,
मॉब लिंचिंग के जरिए लोगों को मारा जा रहा है। एक पूरा गौ रक्षक का सेना बना करके लोगों को तंग तबाह करने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं कि हमको अपने अंदर में भी सामना है, अपने बाहर से भी सामना है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा हो जाती है कि आप हमेशा ऐसे मामलात में कान खड़े रखें जो मुल्की मामलात हैं, जो आपके अपने अंदरूनी मामलात हैं, उससे ज्यादा अहम आज मुल्की मामलात हो गए हैं, जिनके वजह से आज मुल्क में एक इंतशार सा पैदा है। आज देख लीजिए हर जगह इंतशार है, रोज नए मामले हो रहे हैं और उस इंतशार को और बढ़ावा मिलता चला जा रहा है और इस नफरत की खेती में इंसानों का गला कट रहा है। ये नफरत पैदा करने वालों को ये बता देने की कोशिश करना है कि हम नफरत के लिए नहीं, हम मोहब्बत के लिए पैदा हुए हैं, मोहब्बत फैलाने के लिए पैदा हुए हैं। तुम्हारे नफरतों की बात तो हम नजरअंदाज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं। इसलिए आज ये तरक्की मुस्तैदी हमारे और आपके दरमियान में होनी चाहिए। इत्तेहाद इस बात के लिए, इंतशार का मतलब ही नहीं कि हर कोई हर इशू पर एक दूसरे से मुंतशिर हो जाए। आज इत्तेहाद की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है इत्तेहाद की। इत्तेहाद ही सामना कर सकता है आने वाले चैलेंज का, आने वाले चुनौतियों का सामना इत्तेहाद से कर सकते हैं। आपका मुत्तहदा रुख होगा तो इत्तेहाद इंशाअल्लाह जब पैदा आपस में होगा तो आप ऐसे मामलात को जो नफरत की खेती करते हैं उनका सामना भी आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए हमको हिंदुस्तान में जो बिरादरान हिंदुस्तान है, बिरादरान वतन है, उनसे भी राय रस्म को इस्तेमाल करना है। उनके दरमियान, हमारे दरमियान अगर गलत फहमियां पैदा हुई हैं, उन गलत फहमियों को दूर करके एक दूसरे से रवादारी पैदा करना है। ये रवादारी का दौर है। इतनी नफरत के बाद भी नफरत का काट हमारे और उनके रवादारी से हो सकता है, हमारे और उनके मेल जोल से हो सकता है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि आपस में भी इत्तेहाद हो और मुल्क और अवाम के साथ जो बिरादरान वतन हैं उनके बीच में भी जो अच्छी राय रखने वाले लोग हैं, मोहब्बत को पसंद करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से राह रस्म बढ़ाने की जरूरत है, उनको रुजू करने की जरूरत है, ताकि आप और वो सब मिल करके एक निहज तैयार करें और एक ऐसे मिसाल पैदा करें जिससे मुल्क को इस्तेकाम मिले, मुल्क को ताकत मिले, मुल्क को तरक्की मिले और हम सब आप सबको इत्मीनान मिले। इन्हीं बातों को कहते हुए मुख्तसर में अपनी बात हम यहीं पर खत्म करते हैं और यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो इंतजामकार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि कभी कभी ऐसे प्रोग्राम कर लेने से समाज में एक राब्ता बढ़ता है, एक समाज में कनेक्टिविटी बढ़ती है और एक दूसरे के करीब आने का इत्तेफाक मिलता है। वक्त की अगर फरावानी होती तो हम और काफी देर तक आपके बीच रूबरू रहते, लेकिन वक्त की फरावानी नहीं है और वक्त का तकाजा है कि हमको भी वहाँ टाइम पर पहुँचना है। इसलिए आपके बीच केवल और सिर्फ हुक्म बर्दारी के लिए हम आ गए, आपके बीच हम